بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مولا کریم تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کی جو تلاوت کی ہے، مولا کریم تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرحومہ امی جان قبلہ شاہ اویس نورانی دامت برکاتم العالیہ کی والدہ مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. مولا کریم تبارک و تعالیٰ مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، قبر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اللہم اغفرها ورحمها وسکنها فی الجنہ. اللہم اغفرها ورحمها ووسع قبرها واجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اقبال بھائی جی آپ چلے جائیں نا، آپ بھی جائیں، آپ ان کو کہیں 2 منٹ کے لیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اقبال میڈیا کے تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اور تمام حالیہ زیادہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی الحمدللہ صوبائی اور یہاں موجود ہیں، لیبر کمیٹی کے رکن بھی ہیں. اور 23 فروری کے جو جلسہ ہے، 23 فروری جو جلسہ ہے، 22 فروری 23 فروری کا جو جلسہ ہے اس کی اہتمام اور اس کی تیاریوں کے سلسلے میں شرائط تھی اور اجلاس ہم نے رکھا تھا آج اور مشاورت رکھی تاکہ ہم اس پوری 23 تاریخ کی جلسے کی پوری تمام جو لوازمات ہیں اس کو پورا کر سکیں. اور مشاورت کے بعد ہم کچھ اعلان کریں گے. میرا گلا اس میں تھوڑا خراب ہے، میں راشد بھائی سے درخواست کروں گا وہ اجلاس کی تمام بریفنگ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور آپ کے علم میں ڈال دیں کہ جو تاریخ نئی طے کی جائے گی، طے کی گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کے اندر ایک بھرپور طریقے سے تحفظ آئین پاکستان کا جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ بھرپور عوامی نمائندگی کرے گا انشاءاللہ. راشد اور شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات یہاں تشریف لائے. آج یہاں صاحبزادہ اویس نورانی صاحب کے گھر پر رہبر کمیٹی سندھ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صوبائی قیادت نے شرکت کی. اجلاس کے ابتدا میں اویس نورانی صاحب کی والدہ کے انتقال پر تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے تعزیت کی اور مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے دعا کی. مرکزی جماعت نے ملک کے اندر ہونے والے ان تمام حالیہ حالات اور عمران خان کے گورنمنٹ کے بعد ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجوں کے حوالے سے
तफसीली तौर पर गौर व खौज किया। बुनियादी तौर पर इमरान खान के 3 नुक्ते कि मैं 50 लाख लोगों को घर दूंगा, 1 करोड़ अफराद को नौकरियां दूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा लिया तो खुदकुशी करूंगा। इन 3 नुक्तों पर वो अवाम के दरमियान आया। लेकिन आज हाल ये है कि 50 लाख लोगों को घर तो अपनी जगह, इंक्रोचमेंट के नाम पर 10 लाख से जायद लोगों को बेघर या बेरोजगार कर दिया गया है। 1 करोड़ नौकरियां तो अपनी जगह, प्राइवेट सेक्टर से और सरकारी इदारों से, बमा मीडिया हाउसेस से 20 लाख से जायद लोग इस वक्त तक 18-19 महीने में बेरोजगार हुए, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया। और उसके साथ साथ कर्जा नहीं लूंगा। आज इस वक्त 70 साला हुक्मरानों के कर्जे एक तरफ, इमरान खान के 18 महीने के कर्जे 70 साला हुक्मरानों के कर्जों पर भारी पड़ रहे हैं। 5780 अरब से जायद के कर्जे लिए जा चुके हैं, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया। कल की एक खबर मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि एक मुतल्लका खातून लाहौर में अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही है। 30,000 बिजली का बिल आने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। आज मुल्क को बैरूनी तौर पर जो खतरात लाहिक हैं, आप सब उससे आगाह हैं। इस सूरत हाल में 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन से अपोजिशन मैदान में है, अमली तौर पर आवाम के दरमियान है और स्टेप बाय स्टेप अपने तहरीकी तसलसल को आगे लेकर जा रही है। और इस वक्त अपोजिशन की ये तहरीक 3रे मरहले में दाखिल हो रही है। मिलियन मार्चों का आगाज, पहला मिलियन मार्च कराची में हुआ। आज़ादी मार्च का आगाज कराची से हुआ। अब तहरीक 3रे मरहले में जा रही है, तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के नाम से। तो उसका पहला प्रोग्राम भी कराची में मुनक्किद हो रहा है। मरकजी जमात ने 23 फरवरी कराची में जलसे आम का ऐलान कर रखा था, लेकिन आप हजरात के इल्म में है कि 20 फरवरी से 23 फरवरी तक कराची के अंदर PSL के मैच हो रहे हैं और बड़े अरसे के बाद क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बहाल हुई है, जो एक खुश आइन अमल है। हम अपने किसी भी किरदार से इसमें रुकावट नहीं बनना चाहते। तमाम सियासी जमातों ने न सिर्फ PSL को कराची में खुशामदीद कहा है, न सिर्फ उसको वेलकम किया है, बल्कि PSL के शेड्यूल को मुतासर होने से बचाने के लिए आज हमने अपनी तारीख के तब्दीली का भी फैसला किया है। और अब तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान जलसे आम बजाय 23 फरवरी के 27 फरवरी बरोज़ जुमारात दोपहर 1 बजे इस्लामिया कॉलेज निज़ गुरु मंदिर मुनक्किद होगा, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, मरकजी जमीयत अल हदीस के मरकजी कायदीन उस जलसे आम से खिताब करेंगे और वहाँ से अगली हिकमत अमली और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आज के इजलास में जलसे को कामयाब बनाने के लिए ज़िली कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, तशहीरी कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, इंतज़ामी कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं। और हम आज मीडिया के तवज्जुह से कराची के आवाम को अपील कर रहे हैं कि कराची के आवाम बाहर निकलें और 27 फरवरी के इस जलसे आम में शिरकत करें, ताकि इन कठपुतली हुक्मरानों से इस मुल्क को भी निजात दिला सकें, गरीबों, मिस्कीनों, हारियों, मजदूरों की भी आवाज़ बन सके। मीडिया से लेकर फैक्ट्रियों तक, सरकारी इदारों से लेकर आम ठेले और दुकानदार तक जो लोग मुतासर हुए हैं, हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और उनको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ इस तहरीक में हमारे
शरीक सफ़र बन जाएं ताकि हम इस मुल्क को मज़ीद आगे तरक्की की तरफ ले जा सकें और कठपुतले हुक्मरानों से निजात दिला सकें। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का, मीडिया के तमाम नुमाइंदों का, कैमरामैन, रिपोर्टर्स हजरात का मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त और मान बख्शा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 27 फरवरी का जलसा कराची के तारीख का पुरानी तारीखों को देखते हुए सबसे बड़ा जलसा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पहले भी मौलाना साहब से भी ये बात की थी, आपसे भी आज सवाल यही है, क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, इनसे कोई राब्ते का इम्कान है? राब्ता करेंगे नहीं या उनको दावत देंगे? देखिए, दरवाजे बंद नहीं होते, दरवाजे खुले रखे जाते हैं। और मैं राना सनाउल्लाह के बयान को खुशामदीद कहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि मौलाना साहब और अपोजिशन की बाकी जमातें हमसे नाराज़ हैं, हम उनके पास जाएंगे भी, मनाएंगे भी, बात भी करते हैं। हाँ, हमारे मौक़िफ़ की तायीद, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद भी की और फिर मनाने की बातें भी की। तो अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसको भूला नहीं कहते। अगर वो आते हैं तो फिर जो अपोजिशन की जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो दूर करेंगे और बैठेंगे। मरकज़ी क़यादत जो भी उसमें फ़ैसला करेगी, मेरा ख्याल है कि उसमें दो राय नहीं होगी। राशिद साहब, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आज आपकी तारीख जो है वो बजाय आगे बढ़ने के मज़ीद पीछे चली गई, क्योंकि दो अहम बड़ी जमातें जो है वो आपके साथ आज नहीं हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद से एकदम से आप लोगों ने जो ख़त्म किया था धरना, उस पर भी आज तक तनकीद हो रही है कि ये किसकी वजह से, किस यकीन दहानी पर कराया गया। अब तो आर्टिकल 6 की बातें भी हो रही है कि मौलाना साहब को यकीन दिलाने वाली सूरतें कौन है, केस दायर किया जाए। तो ये क्या, ये कहाँ खड़े हैं आप? आज क्या बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और ये कामयाब कैसे होंगे आप? हम आज कल भी आवाम के दरमियान खड़े थे, आज भी आवाम के दरमियान खड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अपने आप को सेक्युलर और लिबरल ज़हन के हामिल जमातें कहने वाले और तब्दीली के नाम पर लोगों को अपने तरफ माइल और मुतवज्जे करने वाले इस्लामाबाद से लौटे थे तो पार्लियामेंट हाउस पर अपनी शलवारें माजरत के साथ लटा के लौटे थे, PTV को तोड़कर लौटे थे, DSP को गले से घसीटते हुए लौटे थे। हम तो कराची से इस्लामाबाद तक गए, एक हमला तक हमने नहीं तोड़ा। ये हमारा चेहरा था जो हमने कौम के सामने और दुनिया के सामने रखा। शायद यही चीज लोगों को खाए जा रही है कि ये पुरअमन कैसे गए और पुरअमन कैसे वापस आए। जब हम बंदूक छोड़कर वोट की पर्ची की और जमहूरियत की और पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जमहूरी चेहरा आपको काबिल कबूल होना चाहिए। तहरीक को कामयाब होने के लिए वक्त लगता है और स्टेप बाय स्टेप हम खुद अपने स्टेप तय कर रहे हैं। और एक बात तो आप मानेंगे कि आज़ादी मार्च 27 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई, बल्कि हमारी तहरीक का आगाज तो इलेक्शन वाले दिन से हो गया था। 25 जुलाई की रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, फिर वो 25 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किसी को नजर नहीं आ रही? इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना नजर क्यों नहीं आ रहा? चारों सूबों के इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के सामने धरने, ये स्टेप थे जो हमने खुद तय किए। 15 मिलियन मार्च हमारी तहरीक के स्टेप थे जो हमने खुद तय किए। फिर कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद के अंदर बैठना स्टेप था, उसके बाद अगला स्टेप। लेकिन हाँ, ये यकीन दहानी करा रहा हूं कि हम अपने काज से पीछे नहीं हटे, हम घर में चुप करके नहीं बैठे। हमारी तहरीक तदरीज बतदरीज आगे बढ़ रही है और उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी जब तक ये कठपुतली हुक्मरान अपने घर नहीं चले जाते। बहुत शुक्रिया। आपने पूछा था 2 सवाल। एक आपने फरमाया कि इस तहरीक के अंदर मैं कहता हूँ चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी शुजात साहब उस आज़ादी मार्च के ज़ामिन हैं और मौलाना साहब ने कहा कि वो अमानत जो है अब उसको लोगों को बता देंगे अमानत क्या है। कल बयान आ गया, तो ये कब तक ख़यानत होगी? अभी तो आप चौधरी साहब ये तो उन्होंने किया, ये तो फिर आप ये सवाल तो हमारा है कि ये ख़यानत छोड़ दो। अब देखिए, पाकिस्तान में कोई भी बड़े से बड़ा काम होता है ना तो शाह ऐसा आपको बुलाया जाता है, आपसे पूछा जाता है और आपकी राय ली जाती है और आपसे ही वो करवाया जाता है। तो इस दफा चोरियों से करवा लिएगा तो बता देना उसमें है क्या, पता तो होगा। सीख रहा है चौधरी साहब से बता रही है ना, तो वो ज़ामिन के तौर पे आए सामने।